Basically, we are discussing a recent controversy involving the Pakistani actor Danish Taimoor. आपने सुना होगा यकीनन, लुईविल में भी बैठ के, है ना? यार अगर मैं ना भी चाहूँ तो फिर भी मैंने सुना है या दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो या क्या पाकिस्तान में उसकी काफी मस्ती चल रही है उस चीज की का और इट इज द कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन और इट इज एंडिंग नाउ? I think his comments on polygamy sparked a heated debate. मतलब यहाँ पर लोग जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बैकग्राउंड अगर मैं फिर भी डिस्कस करूं जिसको नहीं पता, तो दानिश तैमूर ने फेस्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है, फॉर हिज रिमार्क्स ड्यूरिंग द रमजान ट्रांसमिशन कि ही मेंशन्ड हिज राइट टू मैरी 4 times यूजिंग द फ्रेज फिलहाल, लेकिन which many perceived as insensitive towards his wife. I don't know what he meant. उसका मतलब क्या था? Maybe उसने कुछ इस तरह से अल्फाज चुने जो appropriate नहीं थे, but ये वजह क्या बनी? It's backlash जो इतना उसको फेस करना पड़ा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार नो क्वेश्चन ईमान है कि आपकी वाइफ सामने बैठी हुई है। इट्स द लास्ट टॉपिक आई वुड पर्सनली टॉक अबाउट इज about another woman. When my wife is sitting right in front of me, who I love and have a great relationship with, like this is an absolutely irrelevant topic to bring up. मैं कहता हूँ कि अगर आप अकेले भी बैठे हो या अपने दोस्तों के साथ भी बैठे हो, even then, what to talk about when you are sitting in front of millions of people and viewers, it is an absolutely irrelevant comment, and no question that people took offense to it. Many people took offense to it. So that's a simple thing. I mean, I don't think कि मुझे और तुम्हें इतना ज्यादा डिबेट में जाना चाहिए कि इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है या नहीं है, बट आई थिंक Islam talks about many very sensitive topics that you do not want to talk in public, right? Right. So why how can Danish be so comfortable bringing that up? To me, that's a bigger concern. मैं इस चीज में नहीं जानना चाहता कि उसका राइट है कि नहीं है। So मेरा तो क्विक रिएक्शन जो है वो यही है कि it was a wrong selection of place to talk about something like that. I think celebrities often face scrutiny for their words, but this incident shows how quickly a comment can be misinterpreted. मतलब out of context जाके I don't know, but it's a reminder actually कि हम मतलब importance of choosing your words, ठीक है, especially when discussing the personal or sensitive matters. ये आपका एक तो बिल्कुल पर्सनल मैटर है, पर्सनल नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये गलत बात है, आई डोंट नो उसका क्या मतलब, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि आपको कितने वाइजली, कितने जो वर्ड्स है उनका आपको इंतखाब करना चाहिए। Yeah, Imane, you're absolutely correct. So again, I'm going to highlight and then we can move on from Danish and just talk about us and how it applies to us. Okay, number one, it is not a good topic. Forget about the words. Words to second level. Like it's not a topic he should be bringing up with his wife sitting in front of him at a Ramzan transmission. Number one, big blunder. He needs to grow up. He needs to learn. Number two, second thing he did was the choice of the word filhal, again, making it even worse. And the third thing, in my opinion, I also got to look at his apology, which was a half-hearted apology. Really not an apology, but saying, जिन लोगों को बुरा लगा हो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, but मेरा कोई मकसद नहीं था. Apologies barely, if you look at the science of apologies, that is the worst way to make an apology. So there's actually a science, there are recommendations कि आप अगर वो गलती कर दो, जो कि हम सब humans हैं. And in a second, we will talk about our own shortcomings, Imane. I'm happy to share with you in a second कि मैंने कितनी, जिनको आप चबलें कहते हो हमारी नहीं है conversations में, क्योंकि I speak a lot, I say the wrong things, but again, we all need to know the science and art of how to apologize. So I think his apology actually maybe even made it worse for a lot of people. ऐसा ही है कि अगर मैं भी आपको अपनी पर्सनल मतलब डेली लाइफ एग्जांपल दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हम उनमें रोज भी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि हम अपने जो वर्ड्स हैं उन पे हम सोचते नहीं है, लेकिन हम बाद में उसको रिग्रेट करते हैं. So I think a single misstep can lead to significant backlash affecting not just their personal lives but also the professional careers. Yeah, professional career की बात करके let me just be very open and share my own shortcomings के मुझे टाइम लगा सीखने में. मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे आया था, I was just a kid emotionally, and growth point of view. I was like 24 years old as a physician, and यहाँ पे आके मैंने right away जो है started practicing medicine, right? Which is a huge responsibility. कोई other than learning medicine, I never learned the art of communication, the art of being sensitive about sensitive topics. And यहाँ पे here I was talking to patients about dying and living, right? And I just did not do a good job initially. मैंने काफी patients को offend किया. एक पेशेंट को मैंने जो है बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया by acting like a parent to him. I'm like, तुम कैसे कर सकते हो कि तुम अपनी वेट का ख्याल नहीं रख रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. Of course I was saying it in English, but man, that guy I still remember got very upset with me. और मेरा जो मेंटोर थे वहां पे, the patient चला गया, then he taught me, he basically shared with me कि
आरिफ तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी, बट मैन तुम कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट कम अक्रॉस टू देम एज अ पेरेंट. A physician is not a parent to a patient, right? You're just an advisor. So you need to know exactly how to say the sensitive word. इसी तरह इमाने, I get to talk to people about end of life क्योंकि I'm a geriatrician, I take care of older people. मुझे भी उसमें भी वक्त लगा कि कई दफा मेरे वर्ड्स जो हैं बहुत हार्श आ जाते थे बाहर, जैसे कि हमारे पास और कोई चांस नहीं है, आपका टाइम थोड़ा रह गया, राइट? दोज आर रॉन्ग वेज ऑफ सेइंग सेंसिटिव थिंग्स, बट ओवर टाइम इट टुक मी टाइम. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू मेक श्योर कि वी हैव कोचेस एंड मेंटर्स जो हमें कम्युनिकेशन की स्किल दें. और जैसे तुमने कहा, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर एक और लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि दे आर इंटेंशनली लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट अबाउट सेंसिटिव मैटर्स. वही ना, उनसे इतने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो मेरा ख्याल से ये बड़ा एक वैल्यूएबल लेसन है, ठीक है? पावर ऑफ वर्ड्स. आपके वर्ड्स आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं और किस तरह से उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है सब पे. तो डॉक, इसको रैप अप करने से पहले एक मीम है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. एक मिनट. मैंने अपनी वीकनेस तो बता दी. मैंने बता दिया कि मैंने जिंदगी में कितनी चबलें मारी हैं कॉन्वर्सेशंस में. क्या तुमने कभी कोई चबल मारी है कि ईमान है इज परफेक्ट इन एवरीथिंग? नहीं, हजारों दफा मैंने भी ऐसा किया. I mean, मैं बहुत, मतलब इस तरह मैंने बहुत कुछ किया अपनी डेली लाइफ में. मैं आपको अगर बताऊं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं अपने भाई को बोल देती हूँ. छोटा भाई है, ठीक है? अपनी तरफ से तो मैं बड़ी बन के उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में फील होता है नहीं, मैंने ये गलत बात की, बाद में मैं उस चीज को रिग्रेट करती हूँ. सारा कसूर वर्ड्स का होता है. इसीलिए हमें वाकई सोच समझ के ही बोलना चाहिए. एंड या बहुत हरकतें मैंने भी ऐसी की हैं. परफेक्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, रोज करती हूँ शायद. Imane, and you know we'll get to your meme in a few seconds, but I just want to say the last thing कि हमारे पास सिर्फ जो है ना, उसको कहते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट अकाउंट होता है अपने दोस्तों और अपने लव्ड वन के साथ कि हम एक दफा गलती कर सकते हैं लफ्जों में, 2 दफा या 3 दफा. उसके बाद हमारा डैमेज इररेपरेबल हो जाता है. यू रियली जेन्युइनली लूज ट्रस्ट फॉर एवर विद पीपल. सो डोंट थिंक कि दीज आर माइनर थिंग्स कि अगला बंदा आपको माफ कर देगा. आपके वर्ड्स कैन ओनली गिव यू दैट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू फिक्स योरसेल्फ. So, but make sure that we all deliberately look at it because you can lose friends and relationships. And you know, in Danish's case, I'm pretty sure he's already lost millions, hundreds of thousands of supporters just because of his, poor use of, words there. So, all right. So, back to wrapping up with some funny meme. All right, go ahead, please. Okay. अच्छा, फिलहाल इसी डिस्कशन जो हमने किया इसके ऊपर ही मीम है, मुझे बड़ी अच्छी लगी. खैर, मुझे इजाजत है ईद पर 4 सूट लेने की, लेकिन मैं ले नहीं रहा, वो अलग बात है. लेकिन ये इजाजत मुझे मेरे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. लेकिन ये मेरा प्यार है, रिस्पेक्ट है. फिलहाल मैं एक ही सूट पर खुश हूँ. दिल की बात मेरे. लेकिन आप 4 सूट सिर्फ उसी वक्त लो अगर आप चारों में बराबर का इंसाफ कर सको. रिमेंबर दैट. Oh my God. Very relatable. चलो यार, that was a good discussion. अल्लाह जो है दानिश को हदायत दे और उसको हमेशा खुश रखे और उसको भी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे और उसके थ्रू हम सबको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी दे. आई होप कि वी ऑल लर्न फ्रॉम दिस, राइट? किसी के ऊपर हंसना और किसी का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है. लेट्स मूव ऑन, लेट्स फॉरगिव, लेट्स लर्न फ्रॉम इट एंड लेट्स बी बेटर. क्या ख्याल है? What a message actually. All right, Imani, thank you so much. Thank you. Take care. अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में. Bye bye. Bye.